Students, let's discuss Oliver Goldsmith's poem, The Village Schoolmaster. Oliver Goldsmith was born in 1730. He was an Irish poet and he was in fact a poet also, novelist also, essayist also and playwright also. He won name and fame for his novel The Vicar of Wakefield, which was published in 1766. His poem The Deserted Village was published in 1770. And this is an extract. The Village Schoolmaster, this poem is an extract from that poem, The Deserted Village, which is a long poem. And it was a milestone in his literary career. He is also remembered for his outstanding plays, The Good-Natured Man, She Stoops to Conquer. That is also a very beautiful comedy. And his essays collection, The Citizen of the World, which was published in 1762, and poetry collection, Traveller, which was published in 1764. So, this poem is an extract from his longer poem, The Deserted Village. So it is inspired by the pastoral ballad tradition. He represents a lovely and vivid imagery of the village Auburn in Ireland in this poem. So this village is imaginary ideal village based on his recollection of a real village he had lived in. And the portrait of the village schoolmaster is inspired by Mr. Thomas Paddy Bryn, who taught Oliver Goldsmith at Lissoy, which is the Irish village. The poem opens with a casual description of the geographical location of the village schoolmaster's mansion. The schoolmaster was a strict disciplinarian. His pupils viewed him with fear and respect, and the children in general had respect for him, regard for him, but they feared him. Yet they laughed merrily at his jokes. So he was a man of benevolent nature, but he was haughty of his learning. He was jack of all trades. सब चीज़ों की knowledge थी, हर काम की उसको knowledge थी. He knew how to write, debate, solve mathematical problems, survey fields, forecast time and tide, measure and content in a vessel. है ना, किसी बर्तन में पानी देख के कोई भी मैं लिक्विड है देख के बता देता था भाई इतने लीटर है वगैरह वगैरह. Villagers admired him for his impressive use of words, great stock of knowledge. Even the village priest acknowledged his mastery over words. फिर he was fond of arguing. उसको बहस करने में भी मजा आता था. He kept doing so even after being defeated. हारने के बाद भी वो बहस करी जाते थे. So the villagers were amazed and awestruck at the amount of knowledge that lay stored in his small head. So the poet concludes that all his fame had disappeared and even the place belonging to him has been forgotten. So the poem has a rural background. Poem का rural background है. It depicts scenes, objects, folk, manners typical of an 18th century British village. The poem contains Goldsmith's nostalgic reflections of his childhood days. Let's see the text. Beside yon straggling fence that skirts the way,
with blossomed flowers, unprofitable gain. Besides yawn straggling fat. Yawn मतलब there. स्ट्रैगलिंग का मतलब क्या हुआ? स्प्रेडिंग इन एन इरेगुलर मैनर, जो ऐसे उबड़ खाबड़ तरीके से, इरेगुलर वे से, जो झाड़ियां पौधे फैले हुए होते हैं ना। फेंस का मतलब क्या हुआ? बाउंड्री, है ना। फेंस का मतलब बाउंड्री दैट स्कर्ट्स द वे, कि वहां पर देखो जो इरेगुलर वे से पेड़ पौधों से बाउंड्री सी बनी हुई है ना। और वहां पर क्या है? ब्लॉसम्ड फर्ज। फर्ज क्या है? श्रब प्लांट ही होता है जिसमें येलो से कलर के फ्लावर्स होते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं होते वो प्लांट। विद ब्लॉसम्ड फर्ज अनप्रॉफिटेबल गे। गे का मतलब तो ऐसे ही पोइट्री है तो लिख दिया, गे मतलब हैप्पी, कि जहां पर अपने आप से ही वो फूल वाले वो पौधे उग जाते हैं, जहां पर फेंस बनी हुई है, इरेगुलर वे से प्लांट्स हैं, बुशेस हैं, वो उस एरिया में ग्रो कर रही हैं जहां पर वो श्रब है, येलो कलर के वो फ्लावर्स हैं। उस वाले एरिया में क्या है? देयर इज नॉइसी मेंशन। मेंशन मतलब बिल्डिंग, घर, वहां पर उसका घर है और वो नॉइजी है। नॉइजी का मतलब क्यों? क्योंकि वही तो स्कूल है, बच्चों का शोर होता रहता है इसलिए। स्किल टू रूल, विलेज मास्टर टॉट इज लिटल्स। स्किल टू रूल मतलब वो मास्टर जो है वो एक्सपर्ट है किस चीज में? रूल करने में। उसको चलाना आता है, बच्चों को डिसिप्लिन करना आता है, और वहां पर उसने वो अपना स्कूल चला रखा है। विलेज मास्टर टॉट इज लिटल स्कूल। विलेज मास्टर ने वहां पर अपना एक छोटा सा स्कूल चला रखा है। ए मैन सीवियर बॉस, वो जो मास्टर है वो क्या है? बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड स्टर्न टू व्यू, स्टर्न टू व्यू दिखने में भी क्या है? अभी वो बहुत हार्श है ना, स्ट्रिक्ट है। आई न्यू हिम वेल, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि ये पोएम जो उन्होंने लिखी है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, उन्होंने अपनी मेमोरीज के बेस पे ही तो लिखी है। जो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उसी के ग्राउंड पे ही तो लिखी है, जैसा वो फील कर रहे हैं। एंड एवरी ट्रूएंट नो, और हर भागने वाला बच्चा जानता है। ट्रूएंट मतलब भगोड़ा, जो स्कूल से भाग जाते हैं बच्चे मस्ती करने के लिए, घर से स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए और स्कूल से भाग जाते हैं, तो वो उन भगोड़े बच्चों के लिए कितना स्ट्रिक्ट होता था, कितनी उनकी पिटाई करता था। तो हर भागने वाले शैतान बच्चे जानते हैं कि वो कितना स्ट्रिक्ट था, कितना हार्श था। Well had the boarding tremblers learned to trace. बोर्डिंग ट्रैवलर कौन हुए? बोर्डिंग मतलब फीलिंग ऑफ समथिंग इविल और अनफॉर्चुनेट कमिंग अप। बोर्डिंग ट्रैवलर मतलब बच्चों को पहले से ही पता चल जाता। बोर्डिंग मतलब शुरू से ही पता चल जाता था, दिन और स्कूल में आते ही पता चल जाता था उसका चेहरा देख के कि भाई आज तो क्या गड़बड़ होने वाली है कुछ। ट्रैवलर मतलब डर से कांपने लगते थे, जो शैतान होते थे वही ज्यादा डर से कांपते थे। Well had the boarding travelers learned to trace the day's disasters in his morning face. स्कूल में आने के बाद उसका चेहरा देख के ही पता चल जाता था कि आज क्या आफत आने वाली है। डिजास्टर मतलब क्या? विपदा आने वाली है। अब विपदा क्या होगी? अरे छोटे मतलब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो विपदा वो डंडे से पिटाई होनी है, हाथ पे दो चार स्केल लग जाएंगे। तो बच्चों को सुबह उसका चेहरा देख के ही पता चल जाता था कि आज क्या मुश्किल होने वाली है।
और वो बाकी बच्चों को भी बता देते थे। फुल वेल दे लाफ्ड विद काउंटर फिटेड ग्ली, अच्छे से ना हंसते थे विद काउंटर फिटेड ग्ली। काउंटर फिटेड का मतलब क्या है भाई? जैसे एक बच्चा हंस रहा है तो दूसरा उसकी नकल में ही हंस रहा है, क्योंकि अगर क्लास में 20 बच्चे हंस रहे हैं तो बाकी दो नहीं हंसेंगे तो वो फिर टीचर उनको पसंद नहीं करेगा ना। तो ऐसे सबकी प्लानिंग होती थी। एक हंस रहा है तो उसको दूसरों को बात समझ आई नहीं आई, लेकिन वो हंस के टीचर को जरूर अपना एग्रीमेंट दिखा देंगे कि भाई हाँ, हम सब आपकी हाँ में हाँ है। आज भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, है ना, पहले ज्यादा करते होते थे। फुल वेल दे लाफ्ड विद काउंटरफिटेड डी। काउंटरफिटेड का मतलब एक दूसरे की नकल में हंसना प्लान से। तो अच्छे से वो हंसते थे। एट ऑल इज जोक्स, उसके सभी जोक्स पे। किसके? टीचर के सभी जोक्स पे सब बच्चे हंसते थे, है ना, चाहे वो जोक उनको समझ आए या ना आए, पर टीचर के जोक पे हंसना जरूरी है, नहीं तो टीचर नाराज हो जाएगा। फॉर मैनी ये जोक हैड ही, क्योंकि वो जोक्स भी बहुत सुनाता था, है ना? तो ऐसे उस टीचर का इतना रोब था, इतना ऐसा उसका इम्प्रेशन था। आई होप यू अंडरस्टैंड। Next part we will do in the next session. Thank you.